we'll get on to near space operations, and we'll do that. And ये जो near space में we'll cover UAVs, solar powered UAVs and balloons, so that you understand what near space operations are, and we'll cover something about what the Americans did in this rate. Chinese. Okay. Uh, at this time, I'd like to say that I got a request from the Chennai Center for China Studies to make this broadcast and make a special thing, because they're also interested in what happened and everything. I said, look, I'm going to do this live and you can have a look at it. So all those of you who are watching, who are going to watch this from Chennai Center for China Studies, whether live or otherwise, uh, have a look at it. And if you have any questions, you can always come back. We are available to you for discussion. Both of us. Okay. So let's look at the layers of the Earth's atmosphere. Rajiv, you can take us through. हाँ, तो एटमॉस्फेयर से निकलते ही सबसे पहले जो है वो इलाका ट्रोपोस्फेयर का होता है। तो वहाँ पे नॉर्मल जो हॉट एयर बलून, कमर्शियल एयरक्राफ्ट, दीज आर फ्लाइंग 0 to about 18 किलोमीटर्स। इसका नेक्स्ट जो ऊपर है 11 to 50 किलोमीटर्स, एंड द मीजोस्फीयर 50 to 90 kilometers, and thermosphere 80 to 90 to 800 kilometers। ये जो गैप है कमर्शियल एयरलाइंस और बाकी सब जो स्ट्रेटोस्फियर से लेकर टिल lower thermosphere, you can say this is the area that is essentially which we call as near space: stratosphere, mesosphere, thermosphere। बिकॉज थर्मोस्फियर में ऊपर एंड में जैसे निकल के जाते हैं, पिछले इसमें सब बताया था, हमारा लियो आ जाता है, फिर उसके ऊपर मियो आ जाता है, एंड उसके ऊपर आपका एक्सोस्फियर के ऊपर आपका जियो स्टेशनरी आ जाता है। राइट। सो कहने का, या गो अहेड। तो इसमें दिखाया भी है आपको, जैसे स्ट्रेटोस्फियर के अंदर आपको वो आपका रेडोम करके दिखाया हुआ है, रेडियो सॉन्ड। तो वो वेदर वाला है, 2 सैटेलाइट्स अपने बेलून्स दिखाए हुए हैं। वो है जहाँ पे ये एरिया ऊपर अब आने लगता है, जहाँ पे कमर्शियल फ्लाइट्स वगैरह सब कुछ नहीं होते हैं। अमूमन कहते हैं अबाउट 60,000 फीट जैसे ही आप ऊपर चले जाते हो, तो अब काफी ऊपर निकल गए हो आप, और वो एरिया है जो नियर स्पेस है। राइट। इस एक दो चीज और मैं बताना चाहता हूँ। नॉर्मली जो ट्रोपोस्फियर है, राइट, and till about 40 to 50,000, 60,000, this is that place till where commercial airlines fly. And this is called the controlled airspace. Airspace over a country where everything going through in and out is controlled. Beyond that, it is not controlled. But beyond that, in the near space, till it is actual space where satellites fly, this entire space is available for, it's called near space. What is near space क्या है, हम आगे जाके थोड़ा देखेंगे। ओके, राइट। जैसे जनरल राजीव ने बताया, we are not going to talk of Geo, MEO and LEO. These three are existing. Near space is under LEO, under the LEO belt. Okay, this is just to recap. Okay, what is near space? Generally, near space से जब हम बात करते हैं, it is about 20 to 100 kilometers above sea level, right? जैसे बाएं भी दिखाया गया ट्रोपोस्फेयर के ऊपर, till about 100 kilometers. Though really speaking, near space goes up to the exosphere. When you talk of practical utility of the near space, it's up to about 100 kilometers. That is the lower, it covers stratosphere, mesosphere, and the lower thermosphere. Okay, now I'll go a little technical, but it's required. It is above the Armstrong limit. What is Armstrong limit? It is the limit above which humans need a pressure suit to survive. Okay, so you can't survive, you can't breathe, you can't do anything. The pressure is so low. You need a pressurized suit to survive. And that's why when you go on an aircraft, it's a pressurized aircraft. So you have enough oxygen, the temperature is controlled, and you're okay. Okay, if that aircraft was not pressurized, you couldn't go up that high. Right. It goes up to something called the Kármán line, or the Kármán line is where the Earth atmosphere ends
and gravity is near zero. Let me explain this a bit. That means the oxygen completely vanishes there. Though it is said the gravity is near zero, it is not actually zero. The Earth's gravity is always there throughout everywhere. The relative gravity at that point is zero. The gravity of the Earth is still there, but the gravity of the other planets and other planetary objects start playing and it balances out to zero. That's the whole thing. Okay. In the near space, astrodynamics prevails over aerodynamics. Let me explain this thoda, as little easy as possible. What is aerodynamics? अगर आप एक पतंग को उड़ा देते हो, वो हवा के जरिए उड़ता है. So that is something called lift, हवा. बट जब आप इस इलाके में चले जाते हो अबाउट ट्रोपोस्फियर, हवा कम होता है, राइट, और ऑक्सीजन कम होता है, इसीलिए लिफ्ट नहीं होता, तो वो एरोस्पेस नहीं माना जाता है. अगर आप पूरा स्पेस में चले जाते हो, राइट, तो उस वक्त क्या है, फुल स्पेस में एस्ट्रोडायनेमिक्स प्रिवेल करते हैं. व्हाट इज एस्ट्रोडायनेमिक्स? एस्ट्रोडायनेमिक्स इज dynamics, that is movement due to using the gravity or interrelationship between the gravity of planetary objects, right? Very funnily, ये near space में astrodynamics goes over, has a higher degree of value than aerodynamics. You can't fly too well, and there are issues in the near space that I will cover. Right. It is also, in a simpler word, it is above the height of airliners but below satellite. Why airliners? Airliners are powered vehicles. Powered vehicles need oxygen, right? You need oxygen to burn, ignition. Now, if the oxygen is not there, powered systems don't function. Similarly, if air is not there, the air density is so low, then you don't get lift. So these two things vanish around at about 40, 50,000. If you go at times in an aircraft, he could take you up to 42, 45,000 also. That's local phenomenon. So above that, these two problems are there. So you don't get to run an engine and you don't get to steer. That's a problem. Okay, it is also above ceiling of controlled airspace. And this is something which a lot of people exploit. Okay, okay. The air is too thin for air breathing aircraft. जो मैंने बता दिया. At the upper limit, the air friction becomes too strong for LEOs to maintain object. Right? For a LEO to maintain an orbit, it has to be in pure space. Air friction should not exist. If air friction exists, it starts decaying. That orbit starts decaying. It falls down. Okay. Now, this near space is also called the death zone. It is the least explored and the least exploited zone of the atmosphere, right? It is, but in the recent past, this has come to light because it is, because of this Chinese balloon and all that. We will discuss all this. If you have anything else to say, Rajiv, you can add on. बड़ा छोटा सा ही है. नियर स्पेस मतलब वो एटमॉस्फेयर भी नहीं है और पूरे तरह से स्पेस भी नहीं है. स्पेस भी नहीं उन है, दोनों के बीच में जो बीच गैप है में है, उसको नियर स्पेस बोलते राइट. हैं. और मैं आपको, इफ आई पुट इट इन हिस्टोरिकल और मिथिकल टर्म्स, ये त्रिशंकु है, त्रिशंकु स्वर्ग टाइप है ये. ओके, ठीक है ना, ना इधर है ना उधर है. खैर, वो तो हंसी मजाक में था. ओके, व्हाई नियर स्पेस? हम क्यों नियर स्पेस में जाते हैं? क्या जरूरत है? सबसे पहले, यहाँ यू कैन स्टे एंड स्टेयर फॉर वीक्स और मंथ्स एज अपोज टू यूएवीज. देखिए, यूएवी जो है ना, एक जगह रुकता नहीं है, ये टहलता रहता है, तो एक जगह पे स्टैटिक नहीं होता. उसी तरीके से सैटेलाइट भी एक जगह स्टैटिक नहीं होता, क्यों? वो ऑर्बिट में है कि नहीं? तो पर अगर नियर स्पेस में हमें ये फायदा है कि बलून के जरिए खास करके एक ही जगह पे या थोड़ा हिलता रहेगा, पर तकरीबन एक ही जगह पे इट कैन स्टे एंड स्टेयर, राइट, फॉर वीक, एक महीना 2 महीना हम उसको रख सकते हो. इवन अ सोलर पावर्ड यूएवी
जो नॉर्मली नियर स्पेस में इस्तेमाल किया जाए, वो बाद में बताएंगे आपको, वहां कर सकते हो। राइट। इसका बड़ा फुटप्रिंट होता है। ये फुटप्रिंट के बारे में थोड़ी देर दोबारा हम दोहराएंगे। एक ही फुटप्रिंट में पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान या तिब्बत में एक ही लुक में कवर कर देगा। इसी तरीके से अब मान लो अभी चाइना का बलून जो अमेरिका के ऊपर उड़ गया, वो पूरा जहां मोंटाना से लेकर कोलोराडो तक आ गया, मेरे ख्याल में पूरा अमेरिका को उसने पिक्चर विक्चर जो भी करना था कर लिया। एम आई राइट? यस, फुटप्रिंट राइट। बहुत बड़ा होता है, और वो क्योंकि पूरा फ्लो करके चला गया पूरे अमेरिका का, ऊपर नीचे दाएं बाएं सारा कुछ, सब ठीक है। जो कुछ निकालना था मैसेज वो निकाल चुका है। करेक्ट। The persistence which you get in a near space balloon or a near space UAV and the coverage which you can get out of this can only be brought about by a well designed LEO constellation or very distant geostationary orbits. Okay, but when you put a very use a geostationary satellite, you don't get detail. उसके बारे में हम दोबारा in the next slide we will explain. I'll explain to you. And an LEO means constellation. What one balloon or one UAV can do, you'll need a full constellation of 30, 40 LEOs to do. Because remember, LEOs are constantly going around the Earth every 1.5 hours to 2 hours. That's why it said both the LEO or a GEO satellite are costly uh, endeavors, and they have many issues related to them. Right. The near space gives you better operational benefit at relatively low cost. It gives you the almost the effect of a space look, coverage, everything with a much lesser cost and effort. Right. It is known as a surrogate to space-based satellites. Right. Then there is something called, it has got a very short transmission distance and shorter range for surveillance centers. It has two effects. When you have a surveillance center on it, surveillance sensor on it, since the height of this balloon is lower than a satellite, you can afford to have a sensor with lesser clarity, right? You can have a weaker sensor on it. Okay. The second thing is the transmission distance is low. Now, let me explain this a little in detail, because when you transmit something, it goes at a particular frequency and speed and comes back to you at the same thing through the satellite, right? If there's a geo or a MEO or a LEO, there's a time which it takes. Even light takes time to go and come back, right? Now, the time which elapses between a signal going to a satellite and coming back is called latency. Technically, इसको बोलते हैं हम latency. ठीक है। ये जो नियर स्पेस ऑब्जेक्ट्स में लेटेंसी कम है, क्योंकि जमीन से लेकर वो बलून या यूएवी तक डिस्टेंस कम है, तो आपको रियल टाइम ट्रांसमिशंस और रियल टाइम फोटोग्राफी या इट इज बेटर। ओके। उसके बाद डिप्लॉयमेंट टाइम एंड रेस्पॉन्सिवनेस इज मच बेटर, क्योंकि इसमें डिप्लॉयमेंट टाइम कम होता है। एक एलईओ को लॉन्च करने के लिए आपको पहले एलईओ को डिजाइन करना पड़ेगा, सैटेलाइट को, उसके ऊपर सेंसर लगाना पड़ेगा, मेटिंग करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक लॉन्चिंग स्टेशन चाहिए, लॉन्च करने के बाद उसको ऑर्बिट में बिठाना पड़ेगा। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन, इट टेक्स टाइम, राइट। इसमें क्या है, आप झट से कर सकते हो, एक हफ्ता 10 दिन के अंदर वो आपका बलून आपका स्टेशन के ऊपर आएगा, राइट। तो यही नेक्स्ट पॉइंट है, सैटेलाइट्स कैन टेक मंथ्स फॉर सिस्टम कैलिब्रेशन एंड चेकिंग आउट and settling into their orbit, whereas this requires only hours to arrive at the desired altitude and can be positioned on station in a week or so. You get the image footprints are like those of satellites in low Earth orbit, or probably better. The payloads can be lighter because they need not be configured to ward off the effects of the ionosphere. वहाँ गर्मी वगैरह होता है, तो उसको क्लैडिंग वगैरह लेसर, सो योर पेलोड्स कैन बी बेटर ऑफ. And near space offers the unique opportunities for communications, reconnaissance, and surveillance. And that is why the Chinese have gone for it in a big way. Your take, Rajiv, on all these? So the
You can say that the balloon in the near space is like a poor man's UAV in near space. Doesn't खर्चा ज़्यादा नहीं होता है, और जैसे अगर काफ़ी बड़ा मैं सोलर पैनल और थोड़ा प्रोपल्शन उसके अंदर दे देता हूँ, बैटरी का कैपेबिलिटी दे देता हूँ अंदर, तो उसको ऊपर जब जाता है तो उस हाइट में उसको वेस्ट टू ईस्ट का ब्रीज मिल जाता है, तो वो हवे के साथ साथ भी जाता है, और मैं एडजस्ट भी कर सकता हूँ उस सैटेलाइट सोलर पैनल के जरिए, अगर मेरे को कहीं और उसको मूव करवाना है, हल्का हल्का से मूव करा के लेके आना है, तो बलून में उसको काफ़ी सस्ता होता है। उसके नेक्स्ट आता है जो हम अनमैन्ड एरियल व्हीकल सिस्टम का अगर करते हैं, ये सैटेलाइट से बहुत सस्ता है और रीयूजेबल है, और उसके अंदर अगर मेरे को सेंसर बदलना है तो मैं उसको नीचे वापस जब आता है मैं उसको अपग्रेड कर सकता हूँ आराम से ज़मीन पे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सैटेलाइट में एक बार चला गया तो गया वो अपग्रेडेशन गया। वगैरह या और तो ये एक काफ़ी, मतलब ये आप देख सकते हैं कि ये इसीलिए अब, क्योंकि इतना सारा पिछले में बताया था डेब्री भी आ गया है, स्लॉट्स पर रह गए हैं, काफ़ी लोग वहाँ पे जा रहे हैं, तो अब देश हैं काफ़ी, यूएस है, ईयू है, चाइना है, हम भी कर रहे हैं, आई एम श्योर रशिया भी कर रहा है, वो सब देख रहे हैं कि इस नियर स्पेस को कैसे एक्सप्लॉइट किया राइट। Shall we go ahead? जाए। श्योर सर। Okay. एक, to repeat what we had earlier covered, whenever an object, right, goes in space, it makes a swath. The swath is the, the path over which that object goes on Earth, and every sensor on that has a footprint, which area it can see or cover. So that is the thing in the footprint. Okay, but you see, look at this. जब एक सैटेलाइट है, मान लो इन दिस विल कंपेयर सैटेलाइट विद द बलून और नियर स्पेस ऑब्जेक्ट. मान लो एक, A is a satellite in space, right? It is at very great height. That's at about 300 to 800 kilometers. Whereas B, which is a near space object, is just about 40 to 50 to 100 kilometers, max 100, but much lesser. So what will happen is it will have better, clarity. It will give you, you can use a lower grade camera on it to get the same picture, right? And like I said, the distance to travel is lesser, so the transmission time is lesser. Everything, it is responsive. It's just next to you, okay? But the footprint will be low. But the footprint is also not as low as we think. It is quite a बिकॉज bit. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कैलकुलेट किया था, 1,20,000 फुट के 80,000 से 1,20,000 फुट के बीच में अगर मैं नियर स्पेस प्लेटफॉर्म लगाता हूँ, 900 नॉटिकल माइल्स के डायमीटर के दायरे में मैं देख सकता हूँ। 900 nautical miles direct, I mean half of India. हाँ, 1,000 मतलब 1000 पाकिस्तान को आप एक ही इसमें पूरा एक देख इसको लो। देख सकते हो, ठीक है? अफगानिस्तान के ऊपर एक डालो, वो आप पूरा देख पूरा सकते अफगानिस्तान मिल जाएगा आपको, हो। तो राइट? इतना फुटप्रिंट उसका स्वॉथ जो है इतना बड़ा हो जाता है, 900 नॉटिकल माइल्स का डायमीटर। Yeah. So this is the difference, and you also have to remember in this, B is a stationary object, whereas A is a constantly moving object. So you get more time on target. यस। Okay, near space. But near space, let me tell you, is not an easy thing. It's very difficult, and we'll talk about it a little later. Okay, right. So go ahead, explain near space balloon, Rajiv. तो ये बलून जब बनाते हैं तो जो बलून है उसमें थोड़ा तो हवा रहता है, बाकी पूरा हीलियम नहीं तो हाइड्रोजन होता है। दो उसके नोजल होते हैं जो भरने के लिए और डिफ्लेट करने के लिए। उसके नीचे ये पैराशूट होता है जो रिकवर करने के लिए होता है, और ट्रांसमीटर होता है, और नीचे वो टंगा हुआ है पूरा जिसमें सिस्टम होता है। ये टिपिकल अपना रेडियो साउंड बलून है जो ऊपर वेदर के लिए जाता है। बेस प्लेट है,
और जीपीएस आपको चाहिए, या आपका नाविक जब हो जाएगा तो आप नाविक डालोगे, चाइनीज अपना बैदू डालेगा, ताकि आपको एग्जैक्ट लैट लॉन्ग पे पता लगे कि आप किधर पे ये देख रहे हो, और जो भी पेलोड के लिए है, और उसके ऊपर आपके कंट्रोल करने के लिए अंदर आपको छोटा सा जायरोस्कोप लगा के रखना पड़ता है, ताकि वो प्लेटफॉर्म हिलेगा तो आपका कैमरा हिल नहीं जाएगा, वो उसी Yeah, जगह देखेगा। correct. जैसे टैंक का गन स्टेबलाइज होता है, Stabilization is important. हाँ स्टेबलाइज होता है, तो ऊपर जब जाएगा, जब हिलेगा, हवा चलेगा, तो ये प्लेटफॉर्म रॉक करेगा। ये Right. लेफ्ट पे वही दिखाया है जो वेदर बलून है, राइट पे दिखा रहे हैं जो स्पाई अगर करना है तो बलून का साइज कितना बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको अभी वेदर बलून को मैं पूरे उतने नियर स्पेस तक जाने की जरूरत नहीं है, नीचे रखता हूं, लेकिन स्पाई वाला जो बलून है जो हम नियर स्पेस में ले जाना चाहते हैं, जो सबसे सस्ता है, वो काफी बड़ा होता है, क्योंकि उसको लोड भी तकरीबन उतना उठाना पड़ता है। तो एसएस तकरीबन अबाउट 2000 फीट हाइट है, हाइट ऑफ द बैलून, नॉट हाइट जिस पे जा रहा है, पूरे बैलून का हाइट। अगर उतना Yeah. बड़ा करते हैं तो तकरीबन 7000 पाउंड्स के आसपास, मतलब अब तकरीबन 3000 किलो तक का वजन आप उठा सकते हो। Okay. तो वो चाहिए आपको, ताकि तकरीबन 250-300 किलो का तो आपका वो सोलर पैनल ही हो जाएगा, बड़ा सा जो पावर करना है, 6 किलोवाट पावर आ जाएगा अगर इतना बड़ा लगा के जाएंगे आप। और आप देख लो, जो अमूमन ये अभी हमने चाइनीज का देखा था 60,000, बट प्रेफरेबल है 60,000 के ऊपर हो, क्योंकि ताकि जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसके रेंज से बाहर चले जाए, बाहर हो जाएगा, करेक्ट। 80,000 से 1,20,000, जैसी वो स्टैनफोर्ड ने कैलकुलेट किया था। या ये यूएस जो राइट 80,000 में, क्यों बोलता है? राइट का 80,000 पिक, तक वो मिग 31 है, सू उसका जो सू 57 है, अभी जो नया बनाया है मिग 41, वो वहां तक मार कर सकता है। He राइट, can hit you at correct. that In the right one, it is shown here the surveillance balloons 80 to 1,20,000 feet above the surface. This is what General Rajiv Narayan was saying. एसेंशियली Yeah, है कि भाई मैंने अगर भेजा है तो कमर्शियल एयरलाइनर्स तो अलग है, मुझे फाइटर एयरक्राफ्ट से भी बचना है। वो 80,000 right, से 1.5 लाख अपने 1,20,000 फुट पे होता हूँ, तो मैं सेफ हूँ, वो right. कोई एयरक्राफ्ट फायर नहीं कर सकता। Okay. Now, before we get into UAVs and solar-powered UAVs and all that, let's discuss this business of this Chinese balloon. Why do you think China did what it did? सर मेरा ये समझ है कि अभी 2002 में उन्होंने अपना नया कोऑर्डिनेट्स बनाया था पूरा अपने मैपिंग के लिए, एंड बैदू सिस्टम अभी एक्सपैंड कर रहे हैं वो। अब एक्सपैंड जब करेंगे तो उनको मैपिंग की ज़रूरत है, नहीं तो उनके जो भी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है इस ग्रिड में वो गलत हो जाएंगे। इसीलिए ये जो था वो यूएस भी कहता है स्पाई था, बिकॉज एक तो उनके जो साइलोस हैं जहाँ पे लेटेस्ट मिनटमैन आईसीबीएम रखे हैं, वो 3 स्टेट्स हैं, उन 3 स्टेट्स के साइलोस के ऊपर ये होवर किया है। और एक फैसिलिटी उनका अलास्का में है जिसका नाम है हाई फ्रीक्वेंसी ऑरल रिसर्च प्रोग्राम, एंड वो कहते हैं हम ऑरल रिसर्च करते हैं, लेकिन नॉर्मल टॉक में ये है कि वो आर्टिफिशियल वेदर क्रिएट कर सकता है किसी भी देश के इलाके में, या इलाके में, तो उसके ऊपर भी रुका है, अपना ट्रैकिंग किया है। और right, ये मैं मैपिंग का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी टाइप का बैलून अर्जेंटीना के ऊपर भी फ्लोटिंग उन्होंने डिटेक्ट किया था। लैटिन अमेरिका में दो उनके मेन बैदू के बेस हैं, एक सांटियागो में है और एक अर्जेंटीना में है। अब वो बेस अगर बनाया है बैदू का, मतलब अपने ग्रिड के मुताबिक उसने सर्वे करके वो वहां पे बनाया हुआ है, तो एक वो प्रॉपर सर्वे पॉइंट उसके पास है। अब उससे आगे ले जा रहे हैं। हाँ, अब उससे मैप करेगा वो, उस Correct. सेकंड बलून यहाँ पे आ गया,
अब सेकेंड बलून के अंदर और फर्स्ट बलून के अंदर आपने वर्चुअल ग्रिड बनाया है कि अपने वर्चुअल पैटर्न से कि मैथमेटिकली कैलकुलेट करके अब आपके पास एक फिक्स्ड सर्वे पॉइंट है अर्जेंटीना के ऊपर जहां पे वो बैलून लेके आता है, जो आर्टिफिशियल उसने डाला था, वर्चुअल डाला था ग्रिड पॉइंट, इसके साथ मैच करता है, एरर कितना है वहां पे उसने नोट किया। अब कितने लैट लॉन्ग दूर है उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो सकता है। अब वो एरर करेक्ट करके फिक्स कर सकता है अपना कि ये करेक्ट लैट लॉन्ग कहां पे है ये फैसिलिटी। So that means, let's put it in a military manner. Now, having established the grid and having taken this balloon over critical areas, missile silos and all that, so is it fair to say that China has got accurate targeting information over the हाँ American सर, continent? अब तो टारगेटिंग एक्यूरेसी कर दिया है, अभी तक Okay, वर्चुअल पे चल रहा था, जैसे right. ही अभी ये दोनों को डाल दिया अब उसके पास आ गया है। Okay. The second point which I thought was adjunct to this is they have also कि उनको अभी पता है कि अमेरिकन सर्विलेंस सिस्टम क्या है, क्योंकि उसको उन्होंने टेस्ट कर दिया, राइट। लगातार एक ही बलून, एक बलून तो शूट किया और दो तीन और उन्होंने शूट किया लगातार, तो इसका मतलब एक ग्रिड था बलून्स का, क्योंकि एक्चुअली हमें पता नहीं, क्योंकि ये जो हम ऑसेंट से हम काम कर रहे हैं, हाँ सर, दूसरा राइट। पॉइंट जो ऐड जो आपने बताया था, इनका एयर डिफेंस सिस्टम का बड़ा हिस्सा अलास्का और कनाडा में है नोरैड, जिसको नोरैड बोलते हैं। नोरैड या तो नोरैड में ऑब्वियसली जब ये सब चला होगा, उनका बातचीत चला होगा और उसके फिर उन्होंने टारगेट अपने रेडार्स खोले होंगे, कुछ कम्युनिकेशन किया होगा, तो सिगिंट एलिंट वो भी मिला होगा इसको। राइट। और मैं दर्शकों को बता दूं ये नोरैड का क्या मतलब है, राइट। इट इज नॉर्थ अमेरिकन एयर डिफेंस, राइट। एयर डिफेंस। Okay. Okay, the point here is, why is NORAD? Why North? NORAD was established during the Cold War days to intercept incoming missiles from Russia. Or the shortest route from the silos in Russia to America is over the pole, over the northern hemisphere. The shortest route. अभी अभी अगर आप एक एयरक्राफ्ट में जाओगे तो the shortest route is over the almost over the pole, Greenland वगैरह के ऊपर जाता है। ओके, बिकॉज ये जो अपना अर्थ का कर्वेचर को इस्तेमाल करते हैं टू यूज द शॉर्टेस्ट रूट, एंड दैट इज व्हाई नोरैड इज ओरिएंटेड टू द नॉर्थ। एंड ये चाइना वालों ने वो नोरैड को टेस्ट कर लिया अभी, राइट। उनको अभी पता है कि किस तरीके से ये करेंगे, नहीं करेंगे। ओके, उसके अलावा जैसे जनरल नारायणन ने बताया, ग्रिड भी एस्टेब्लिश हो गया, इनका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एलेंट वगैरह भी ये इनको पता चल गया चाइना वालों को। ओके, लेट्स फ्लिप। वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन सिग्नल का ग्रिड भी पता लग गया, किधर किधर जाता है, किधर किधर से कहाँ आता है, राइट, कहाँ कहाँ लोकेटेड। लोकेटेड है। ये तो चाइना वालों ने किया। आप ये बताइए इसका काउंटर अमेरिका वालों ने क्या किया होगा। अभी जब इसको निकाल के लेके आए अभी चुपचाप से, तो ये पूरा खोल खाल के उसी में से मैसेज हाँ, भी वो तो रिट्रीव एक करें। तो ये है, पर मेरे ख्याल में कुछ तो हम्म। हवा में भी किया होगा जब ये हवा में घूम रहा है। नहीं, उन्होंने तो अपने एयरक्राफ्ट से फायर किया था, बट उनको अपने सैटेलाइट से उन्होंने अपना तो पूरा ग्रिड किया हुआ है, तो जीपीएस का नहीं, फुटप्रिंट ये तो पूरे इसमें कोई दुनिया में। नहीं, नहीं, अमेरिका डजंट नीड ग्रिड, but definitely my this thing understanding, America would have electronically probably neutralized this सर उसने before. अभी जब पता लगा था उसको, उसने एक तो पैसिवली पूरा चेक किया होगा उसका कि क्या क्या वो उसके खुद का कम्युनिकेशन किस तरह से कम्युनिकेशन जा रहा है, Yeah. कौन से सैटेलाइट से जा रहा है, उनके सैटेलाइट्स ऊपर है, उधर से किस बेस स्टेशन ग्राउंड स्टेशन कहाँ लोकेटेड है, कहाँ जा रहा है, उसने भी रिवर्स पूरा, रिवर्स बिकॉज पूरा, वन इसका वे मतलब ट्रैफिक भी होता है, या इट्स सो इट उसने इज रिवर्स पूरा चेक कर लिया है कि या चाइना क्या करता है। सो एंड अगर हम सोचते शो हैं ऑफ कि फोर्स दिखा दिया कि मेरे पास ये हथियार है F-22, इससे मारूंगा। मार सकता हूं, तो ये मत सोचना कि चाइना ने पूरा वार किया है इसके ऊपर और चाइना का कोई पूरा फायदा है। उल्टा
चाइना ने अमेरिका को पूरा मौका दिया कि वो अपना पूरा डिफेंसेस को टेस्ट करे, और अमेरिका को सतर्क कर दिया। अमेरिका का पूरा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जो सपोर्ट सिस्टम है या काउंटर सिस्टम है वो सब को एक्सरसाइज हो गया। और चाइना ने ये भी पूरा तय कर लिया अभी ये ये जो बलून है कहाँ से आया, कहाँ इनका बेस स्टेशन है, कहाँ क्या है, सब कुछ उनको ऑलरेडी खबर पूरा हो गया। ऊपर और तो और उनको पूरा जो जो पेलोड है चाइना का वो वो उनके पूरा आ हाथ में गया। है, राइट। ओके। और एक और बात है कि उन्होंने पूरा अपना देश को संबोधित किया कि भाई हम इसको गिरा सकते हैं, लड़ाई हो गया तो। सो ये बात ये है कि इसमें दो तरफा खेल हो गया है, राइट। और let's talk of the geopolitics of this a bit before we get back to the thing. अब वो ये हो गया कि एक तो जो विजिट होना था वो वो कैंसिल कैंसिल हो हो गया, गया। हालांकि म्यूनिक सिक्योरिटी समिट में मिले हैं, but it is बट a cold exchange. वो तो कोल्ड है। सो Yeah, तो ये एक हो गया है कि जो ये पहले सोच रहे थे कि हम थोड़ा रिलेशनशिप इजी कर लें, वो खत्म वो हो गया। खत्म हो गया है। और अब तो उनको डांट पड़ रही है कि खबरदार अगर आपने हथियार रशिया को दिए। दिया। ये so लैंग्वेज the पहले नहीं था। so that means there is a huge geopolitical fallout of this balloon gate. I call it balloon gate, बिल्कुल, right? इसके पहले, इस बैलून गेट के पहले ये लैंग्वेज नहीं था चाइना नहीं के था, साथ। हाँ, चाइना के अब साथ। कह और रहे खबरदार अगर आपने हाँ, दिया। राइट। और चाइना भी भौंक रहा है, हाँ, राइट। चाइना भी अपना अब बोली है कि वो भी अपना अब वो देर बिकम कह मोर रहा है, एग्रेसिव। बट उसको डर ये भी है कि और सैंक्शंस हो जाए तो सैंक्शंस, या, इकोनॉमी तो एसिटिस घिसरपट्टी में नीचे जा रहा है और तेज ना हो जाए। राइट। और वन मोर थिंग इज दैट अमेरिका बाय दिस एक्शन has consolidated its hold over its allies, एलाइस बिल्कुल। राइट। वो अभी उनके allies को सबको पता है कि भाई देखो ये चाइना का जो बलून थ्रेट जो आएगा हमारे ऊपर उसको दूर करने के लिए हमें अमेरिका की जरूरत है, और ये एकजुट होकर रहना बहुत उचित होगा। सो ऑल दीज फैक्टर्स हैव आल्सो प्लेड इनटू दिस। और एक मेजर फैक्टर आ जाएगा, हालांकि हम कहते हैं कि ये इतने एयर स्पेस तक वो कंट्रोल होता है, मतलब राइट। वहां पे हम बता देते हैं फ्लाइट क्या है, लेकिन कोई एग्रीमेंट अभी तक नहीं हुआ है कि कितना एयर स्पेस, जैसे अनक्लॉस है, कहते हैं 11 नॉटिकल 12 नॉटिकल माइल तक आपका इलाका है। इलाका इसमें ये ऑल्टीट्यूड नहीं में है, अभी तक नहीं गए हैं कहने के लिए कि कितने हाइट तक आपका इलाका होगा। राइट। ओके। और शायद इसके पीछे फिर कोई एग्रीमेंट आगे चल के, अरेंजमेंट या एग्रीमेंट अभी आ शायद शुरू हो सकता है इसके सकता बारे है। में बातचीत, राइट। ओके। तो अभी हम वापस चलेंगे टेक्निकल एस्पेक्ट्स फ्रॉम जियोपॉलिटिक्स। सो दिस इज थिंग अबाउट द UAVs, right? Solar powered ये UAVs and right, यस, and अभी high दो altitude जो UAVs. मैंने Yeah, दिखाए हैं, yeah, ये लेफ्ट पे है, करंट इन सर्विस है इनका ग्लोबल हॉक। yeah, ये तकरीबन 60,000 फीट तक फ्लाई करता है, बट कैपेसिटी काफ़ी है। इसका 1360 किलो, 1360 केजी का इसके कैपेसिटी है। बट एंड्योरेंस तकरीबन एक एक दिन प्लस है, 34 प्लस आवर्स है, घंटे, मतलब एक दिन और तकरीबन 6 से 10 घंटे। अभी ईयू चाइना बाकी जो कर रहे हैं वो अभी प्रोटोटाइप स्टेज में है, कैपेसिटी अभी थोड़ा कम है। right, दाहिने तरफ इनका बना रहा है बोइंग, ये नॉर्थॉप ग्रूमन का है, फैंटम आई बोइंग का है, लिक्विड फ्यूल। तो अभी टेंटेटिवली इसका सीलिंग हाइट 65,000 रखा है। अगर लिक्विड फ्यूल, लिक्विड हाइड्रोजन का सक्सेसफुल हो जाता है तो और थोड़ा ऊपर भी जा सकता है। जा सकता है, right, एंड्योरेंस 4 से 8 घंटे है और कैपेसिटी तकरीबन 200 केजी है, मतलब right, सेंसर्स कम है, ले जा सकता है। right. इसी बात पे ये जो, चाइना और ईयू जा रहे हैं सोलर के ऊपर। yeah, we'll get to that. Right, these are powered aircraft.
बात यह है पावर्ड कि है। ये पावर्ड एयरक्राफ्ट, राइट, दे नीड फ्यूल, दे बेस्ड ऑन पावर। आप देखिए ग्लोबल हॉक के ऊपर एक टरबाइन है जो सक करता है, तो इसका हाइट सीलिंग में फंस जाएगा, ये तो ज्यादा 60 से हाइट, ऊपर नहीं जा या सकता, साठ सीलिंग हाइट है। साठ 65 से ऊपर नहीं जाएगा, और इसका एंड्योरेंस भी थोड़ा कम ही है। एक दिन 8 घंटा, 9 घंटा, 10 दिन, तो 12 दिन, जो 12 घंटा 34 घंटे बोल रहे हैं ये टर्न अराउंड है। टर्न अराउंड, या मतलब सो पहले गोइंग एंड कहाँ से जो भी टाइम दे रहे हैं ये टर्न अराउंड है, टर्न अराउंड पे, मतलब ये अपने एयरफील्ड से टेक ऑफ करेगा, स्टेशन पहुंचेगा, लॉइटर टाइम, और वहां एंड से देन वापस आके वापस, लैंड करना। या सो दिस इज लिमिटेड, राइट, अनलाइक अ बलून जो हमने पहले देखा, जो यस, बलून जो है ना 1 महीने भी रह सकता है, बट ये, आराम से। राइट, ओके। नाउ लेट्स लुक एट द, यू नो, या हाँ सर, सोलर पावर्ड ये यूएवीज। है सोलर पार्ट जो यूरोप बना रहा है, जिसको जेफिर बोलते हैं। ये अंडर 8.5 एक्चुअली, जेफिर पहले से बनते जा रहा है, अभी लेटेस्ट उनका 8S है। सीलिंग हाइट है 76,000 प्लस फीट, और ये 26 दिन तक रह सकता। लॉइट इसका टर्न अराउंड टाइम इज 26 डेज। इसके पास अंदर स्प्रेड करके इन्होंने बैटरी बना रखा है कि भाई दिन में सोलर से वो बैटरी को चार्ज कर लेता और रात पूरा फिर ये ये, बैटरी के या, साथ चल सकता है। ओके, और अबाउट 65 kg वेट है। ये राइट, दिस इज, चीनियों का है, राइट, किमिंगजिंग, मॉर्निंग स्टार, इनका एविक, दी एविएशन इंडस्ट्री चाइना है। दो हैं इनके, कैसिक और एविक। तो ये एविक का है, और ये नया अभी तक उन्होंने डिस्प्ले नहीं किया है, ये आर्टिस्ट का इंप्रेशन है। फेयून सोलर, वो कैसिक उनका बना रहा है। तो ये सोलर में जा रहे हैं ताकि सेम ज्यादा दिन रुक सकता है वहां पे। और दोनों तरफ आप देखो, सोलर यू भी कर रहा है, ये भी कर रहे हैं। यू वाला जेफिर तो 26 दिन, और इनका भी बड़ा जितना, इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना बैटरी पावर अपने पास रखते हो, बैटरी का लाइफ कितना है, और वो आपका ऑल अप वेट कितना लेके जा सकते हो, बिकॉज उसका वेट आप बनता है बैटरी का। तो नए नए अभी हम लिथियम आयन, तो बैटरी है कोबाल्ट वाला, लेकिन अभी आयरन फॉस्फोरस भी आ रहा है, और सोडियम आयन के ऊपर भी काम चल रहा है, काम हो जिसमें रहा है, बैटरी का वेट कम हो जाता है और ज्यादा पावर जनरेट करता है। तो ये अभी अंडर, ये अंडर दिखाने के डेवलपमेंट। लिए है कि सब अब नियर स्पेस के ऊपर जा रहे हैं। नहीं, एक और एक दो चीज और मैं ऐड कर लेता हूँ। अब देखिए इसके विंग्स कितने लंबे हैं, हाँ, राइट, इसका दो दो पर्पस है। एक तो ये पूरा विंग जो है ना एक सोलर पैनल है, राइट, जितना बड़ा आप सोलर पैनल लगाओगे उतना आपको पावर मिलेगा, सो इट सर्व्स दैट। द सेकंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने पहले भी बताया, सी, यूएवी नीड्स लिफ्ट, बिना लिफ्ट के हाँ, वो काम नहीं करेगा। और उड़ेगा, लिफ्ट के लिए आपको रुकेगा। विंग सरफेस एरिया चाहिए, मैक्सिमम सरफेस एरिया, राइट। अगर आपको मैं उदाहरण, आपको प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ, अगले बार अगर कोई भी आप हवाई जहाज में अगर फ्लाइट कर रहे हो और विंडो सीट आपके ऊपर, वो विंग सीट के ऊपर है, तो आप देखिए लैंड करते वक्त और टेक ऑफ करते वक्त उसका विंग फैलता है, बड़ा होता है, ताकि सरफेस एरिया ज्यादा हो और उस वक्त लिफ्ट और ड्रैग एज रिक्वायर्ड ज्यादा हो, राइट। इसी तरीके से ये लंबा विंग स्पैन जरूरत है यूएवी के लिए, फॉर खास करके सोलर पावर्ड यूएवीज टू लिफ्ट, क्योंकि उस इलाके में लिफ्ट नहीं मिलता, हवा नहीं है, डेंसिटी कम, जब तक एयर इज नॉट डेंस यू डोंट गेट लिफ्ट। सो दिस अ लिटिल टेक्निकल आई हैव गॉन, बट आई थिंक यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो व्हेन यू, अगर आप कंपेयर करेंगे कि एक बलून और यूएवी के बीच में क्या है, the UAV has got a lot of limitations, whereas the balloon has lesser limitations, right? And when you are exploiting near space, the balloon gets a little more, weightage, right? But again, it is not that the balloon is better or the UAV is better. It's a matter of what you have at the time and space, what you want to deploy. But these बलून are the two और, options available. करेक्ट, बलून और सस्ता है, और केवल यही है, जैसे पहले बताया था, बलून को अपने स्टेशन में पहुंचने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है, यूएवी को कम लगता है, और Yeah. यूएवी महंगा पड़ता है आपको, आसान नहीं। Okay. Right.
And of course, the last slide of us, which I thought we'll put across to you. So we have seen balloons, solar-powered UAVs for near space. But instead of both these, you can use microsatellite constellations also. Cheaper variety of thing, disposable, fast launch systems, which are also being developed, right? And some of these you need not put them fully in space, you can use them in near space. That's the thing which is going on. So even if that satellite goes, it doesn't matter, you should have the capability to relaunch and reposition, and with lesser requirement. And if technology goes ahead like this, you might have a quick launch system, right? Just before a conflict, and when if conflict is imminent, you should be able to launch and monitor, and with lower, cheaper micro satellites, right? Disposable satellites, or you can do things, but that is still a thing in work in progress. Okay, उसको लॉन्च ऑन डिमांड भी कहते हैं. launch and demand bolte hain, correct, right? So that's what the future is going to. Okay, so the whole thing, when you look at a near space system, you need to look at the whole ecosystem. You need to look at how you're going to launch it, because you need to have the launch capability. Then you have to see whether the satellite is good, or a balloon is good, or a UAV is good. You have to see what are the sensors you carry, what is the weight of the sensors you carry, what is the power required. Are you going to use just a surveillance sensor, or are you going to use it for a radar, or you're going to use it for MET systems, because you still need MET at that height if you're going to use long range missiles. So it depends on what sensor you want to carry, or you want to use it as a communication relay. Just have it off grid somewhere, and it gives you fantastic communications. And then you need a extensive ground station setup. ये नहीं कि जो हमने पहले बताया, earth segment has to be very strong, right? And of course you need to have launch stations, you need to have the capability to have launch stations, which not many countries have, right? Okay. Oh, बिकॉज these are the few things which. ग्राउंड स्टेशन का ये एक और ऐड करता हूँ. ग्राउंड स्टेशन इज नॉट जस्ट टू रिसीव सिग्नल्स बट ऑल्सो टू सी Send, एंड टू yeah, पास ऑन सिग्नल्स टू pass. देम. Okay. So all these things have to be factored in. Now we'll, Rajiv, I want to know, should we go in for these, and what will it take for us to go in for all these? वी मस्ट सर, बिकॉज एसेंशियली जैसे हम एयर डिफेंस का कहते हैं ग्रिड होना चाहिए, ये भी सिस्टम्स का हमें एक ग्रिड चाहिए. कोई एक सिस्टम नहीं है विच विल बी पनेकिया फॉर एवरीथिंग. वो आपको कुछ इतला करता है जिसके बेसिस पे आप अपना दूसरा यूएवी प्लेटफॉर्म फायर करके वहां देख सकते हो क्या देखा है, और ज़रूरत पड़ी तो टैक्टिकली अपना ड्रोन भी फायर करके आप सारा कुछ पता कर सकते हो क्या है क्या नहीं है. तो इस ग्रिड में नियर स्पेस आई फील काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, स्पेशली मिलिट्री डोमेन में. क्योंकि लियो मियो जियो चलो है मिलिट्री डोमेन में कम्युनिकेशन वगैरह के लिए भी, वो जैसे देखा हमने फुटप्रिंट उतना ज़्यादा नहीं होता ज्यादा है, नहीं मिलेगा आपको, ज़्यादा नहीं राइट? मिलता है. तो इसमें क्योंकि बिकॉज वो सैटेलाइट जब ऐसे एक ही पाथ में जा रहा है, ये हमें वो ऑर्बिटल पाथ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये अपने उसी इलाके में होवर करके घूमता है. घूमता है. So you have तो a lot of फुटप्रिंट बेटर advantages. नहीं. So we need to have a program for this, right? यस And यस. the second thing which ये कि इसका दूसरा पहलू है कि should we have a counter for this? क्योंकि अभी हमें काउंटर. very clear है कि China is going to यस. China might have already put balloons over our area. एक खबर ये भी आया था कि अंडमान निकोबार के ऊपर एक बलून भी साइटिंग हुआ है. ये बलून जरूरी नहीं है कि आपके सर के ऊपर हो, ये हो सकता है ये अफगानिस्तान के ऊपर मंडरा रहा है और आपको देख रहा है, राइट? सो डू यू नीड टू हैव अ काउंटर, एंड हाउ डू यू गो अबाउट इट? काउंटर तो चाहिए सर, इसीलिए वो उतने हाइट पे जाने वाले हैं. तो हमें एसेंशियली जैसे वो देखा था नॉन काइनेटिक मेथड, कि उसके कम्युनिकेशन को जैम कर दो. जो हमने सिस्टम्स बनाए थे एंटी सैटेलाइट वाले, जरूरी वो नहीं है इसके कि लिए, मैंने वो भी इसके लिए भी इसी काम के लिए करता काम आएंगे, राइट? In है. fact, इसके I और just want to reinforce what you said. Your ASAT systems in this
current context have more relevance in against balloons बोलो, than satellites. अगर मैंने सिस्टम ही जला दिया उसका तो वो घूमता रहे, खत्म. क्या करेगा, या जैम कर दिया पूरा मैंने। So the major thing that we need to understand is that if you knock out a satellite in space, you create space debris. If you knock out a balloon, you don't create space debris. It will burn out and come down, right? So that thing is not there. So your ASAT systems, जो हमने 4 दिन पहले 2 दिन पहले इसके बारे में जिक्र किया था, that capability you have is worth its weight in gold today, right? We should be very clear as to that we can knock out any Chinese balloon over us, right? So that is very clear. The next question, which I thought we'll put across, we could discuss. Ki, what are the issues which you have to put in place to ensure that we can take on a Chinese balloon? One is geopolitically, probably we have to tell China, if you do this, we're going to do this, right? And somehow we can do that messaging. And what do you have to put inside within our system? सर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज ट्रैकिंग टू नो Yeah, दैट इट हैज कम ऑन टॉप, correct. because at that altitude 70-80,000 feet to view it in the naked eye is It's impossible. out of question. You need electronic tracking. There's no two ways You need about it. an electronic tracking, and वो भी मतलब you we must speak to the Americans and request them in the our int agreement to share the library of what they have. Yeah, that's क्योंकि important. उसका जो साइज है वो रिफ्लेक्ट कर देता है बीम को सब तरफ, तो इट इज नियर स्टेल्थ, इट वोंट बी स्टेल्थ, बिकॉज हम Yeah, रडार से ट्रैकिंग कैसे करते हैं, बीम फेंकते हैं वापस आता है, जहाज में हम वो एजेस को कर्व कर देते हैं, अब्सॉर्बिंग पेंट लगा yeah, but the देते हैं, balloon is so big it can't बलून इज go. राउंड, So you'll बलून इज get it. राउंड, जब तक सीधा नहीं लगेगा 90 डिग्री पे, वो जरा सा साइड पे जाएगा वो तो Yeah, डिफ्लेक्ट हो but जाएगा। look, Rajiv, you'll for a thing which is so big, you'll catch it. It's You not. will That's not get, my but intent. what I'm saying is the radar Use cross section will be small. So if we can get the share Yeah. from the So if you already critical have already have the fingerprint of these Chinese balloons, which the Chinese, Americans will have. So yes, your in sharing agreement will help should come there, in. तो आप and अपने रडार के लाइब्रेरी में जैसे ही डाल देते हो, so you'll get तो it. जैसे ही वो दिखेगा, वो रडार आपको उसका सॉफ्टवेयर आपको बता देगा कि ये दिस इज समथिंग फिशी, Right. so So you are this is able to one. track Yeah. one. So this is one And part of the story. Yeah. the other is, now you take a call. Are you going to firstly go the kinetic method Or or the the electronic method. non-kinetic method? So kinetic method का हमने capability already दिखा दी है. So kinetic method is not a problem. You will be able to use it. Non-kinetic का we should work on what you want to do. What Do you you want want to to do? corrupt the message? You want to jam Yeah. it? You want to burn it? Because corruption is also a method कि आप उसको गलत information दे रहे हो, उसको पता भी नहीं चलेगा कि information Yeah. So that brings me to the next point. Which you actually have triggered, that the non-kinetic method is a better way of many times better way, because you would yes. have handled that threat and without any Geopolitically fuss. It is the geopolitically safe ज़्यादा fuss भी नहीं होता है. fuss bhi nahi hota. So the fact is that in this entire process, I think we need to have a strategy for near space, which बहुत we don't ज़रूरी have. है, बहुत ज़रूरी है. It is not just how to use it. But जैसे how हम to बोलते हैं exploit? सर, our own counter measures, that Yeah, हम यूज करेंगे तो दुश्मन देश हमारे अगेंस्ट ही विल डू समथिंग. So what are the countermeasures? And last, what we had discussed, the countermeasures. counter measures. So you need a whole policy for near space and a strategy for near space. And I think the time has come in India to have a joint approach to this between the Yes, civil and military. that's where And it's civil military fusion becomes very important. very important, because the ISRO and the DAE, I'm taking DAE also into account, have tremendous knowledge about the Yes, right, and the DRDO also, by DRDO. virtue of their work in the missile systems.
And then the armed forces. And in the armed forces, you need to have a joint approach. So that means you're looking at theaterization, Yes. right? So so you have to rethink the a lot of things in this balloon business. I mean, I have purposefully taken away, brought transited from military technology into geopolitics. Sir, I have always been of the firm opinion that before you go into theaterization, you must have your integrated strategy covering everything in place. कि Place. मैंने लड़ाई इस तरह इस से तरीके लड़नी से, है, yeah, उसको लड़ने के लिए मुझे क्या काबिलियत चाहिए, that you then you should put go in on your capability building and your priority for procurement, और उस काबिलियत को बेस्ट यूज करने के लिए मुझे क्या स्ट्रक्चर चाहिए, right. एंड दैट इज हाउ यू गो That इनटू is what, yeah, थिएटराइजेशन. and it is only then that the ASAT will be put into the right frame. Everything will Your come into everything place. will come Otherwise, into you its will be right frame. going penny packets. नहीं अच्छा Penny ये भी दे packets, दो वो भी and दे our दो. thinking will be penny packeted.